We'll be starting off with the discussion. Just let me know if my audio and my video is fine, so that I can get to understand कि उस तरफ से सब ठीक है या नहीं, and have people joined in. Yeah. Let me know if my audio and my video is fine. Hi Rajat, good morning. ठीक है, I think it's good to go with. Hi Hina, good morning. So we will be starting off with the discussion on alternate investments. This is the first learning module of alternate investments, and basically the thing is, see, if you have been doing the classes with me ever since the very beginning, तो what I'm talking about is कि आज जैसे अपना इक्विटी का जो फर्स्ट क्लास था, दैट वाज मोर ऑन द इंट्रोडक्टरी पार्ट ओनली, वेयर आई हैड डिस्कस्ड कि मैं आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है. The 3 of them would be the asset classes and the 4th one would be portfolio management. ठीक है. So the asset classes में we completed equity and then I directly moved on into portfolio management, because क्या होता है, once you know one asset class, you should know how to be able to make a portfolio. And fixed income जो है, point is fixed income, a lot of people find it a little on the difficult side. तो व्हाट आई हैव डन इज दैट कि टेंजेंशियली आप देखो, नॉर्मली फिक्स्ड इनकम जो होता है, तो फिक्स्ड इनकम थ्रू एंड थ्रू इन द करिकुलम बेसिक आप लोगों के सबकॉन्शियस में बिल्टअप होते जा रहा है कि एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे होता है इन जनरल. फिक्स्ड इनकम इज अ टाइप ऑफ लोन, ठीक है. अब लोन जो है उस पे आपको इट्स लाइक यू हैव गिवन अ लोन टू समबडी, उसके ऊपर आपको कूपन 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 मिलते जाएगा. उनका वैल्यूएशन कैसे होगा, वो बेसिक आपके माइंड में सबकॉन्शियसली स्टोरी बिल्डिंग होते जा रहा है. When we actually get to fixed income, you will better be able to relate, because आप लोगों का ये सारा चीजें हो चुका है. एग्जाम्पल जैसे पोर्टफोलियो में we had something called beta, right? So what is beta? Beta is basically if market increases by 1% and if beta is 2, तो stock would increase by 2%. Sensitivity. Even in fixed income we have a something measure similar to beta, duration. Same feeling, believe me, same feeling, sensitivity वाला feeling. तो इसलिए सारा चीजें करने के बाद when we go to fixed income, that will be completely clear. Here we are going to be talking about alternate investments, ठीक है. And the point is that the discussion is actually very interesting. So if I were to just tell you, so definition क्या होता है alternate investment का एकदम broad way में, anything and everything that is not traditional equity and fixed income would be classified under alternate investment. ये definition मैंने आपको first class में भी बोला था, equity का जो first class था. Anything and everything that is not classified under traditional equity and traditional fixed income, they are known as alternate investments. ठीक है. अब यहाँ पर मैंने, अगर आप ठीक से देखो, equity and bond नहीं बोला, right? I didn't say equity and fixed income. I said traditional equity and traditional fixed income. Why? Because when I talk about traditional equity, think about it. आप जब equity का बात करते हो, ठीक है, equity में what do you say कि if you want to buy shares of say Reliance Industries, right? So what would you do? You would just simply open up your brokerage account. You would see Reliance Industries and you would simply hit a buy, right? Market order, limit order, that's a very different thing. But आप इसी तरीके से buy करोगे. If you want to buy some maybe government bonds, you would do the same thing kind of. अब इंडिया में तो the corporate bond market is not that developed, but if you were in US, you would have done something similar to that. कोई bond का exchange होगा, वहां से जाकर के आप bond खरीद सकते हो. So when I talk about traditional equity and fixed income, I'm actually talking about the listed space, जो बाजार में list हो रहा है, जो बाजार में trade हो रहा है, right? The public equity and the public fixed income. Similarly, if there is a public side to it, there is a private side to it as well, na? So when we talk about private equity, when we talk about private debt, right, they would be classified under alternate investments, right? That's the first thing. Now second thing would be anything else, ठीक है, anything that is not listed equity, listed fixed income. Can you give me some examples? आप मेरे को बताओ examples. Go ahead. Awaiting. Tell me. What can be some examples of alternate investment? खुद से ही बताओ, no problem.
एनीथिंग दैट इज नॉट पब्लिक इक्विटी और फिक्स्ड इनकम, ठीक है, हाँ करेक्ट, वेरी गुड धर्मा. रियल एस्टेट, something else other than real estate? hedge funds, art, हाँ very good प्रीतम. commodity, हाँ correct. art, good. किसने बोला हाँ क्रिप्टो, गुड. पीयूष ने आई थिंक बोला था कमोडिटी. हाँ आई थिंक मोर और लेस आप लोगों को बेसिक आइडिया हो रहा है. अब इसमें वी कैन इवन टॉक अबाउट सॉरी से इंफ्रा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, कितना सारा ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है. बट डू यू सी समथिंग, वेट, टेक एनी एग्जाम्पल, एनीथिंग. फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट का अगर आप बात करते हो, इट इज लाइक यू आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट. आप एक घर खरीद रहे हो. Hi Pawan. So basically there is no problem at all. We were just discussing what an alternate investment is, and we discussed these are the types of alternate investments. ठीक है. So yeah. So say for example आप real estate का अगर बात कर रहे हो, effectively what you are talking about is you are buying a particular house. Now even real estate में भी we can do residential real estate, we can do commercial real estate. वो देखेंगे जब categories का discussion करेंगे, we will see. But just to get a feeling of what is actually happening over here, imagine you invest in real estate or a portfolio of real estates. ठीक है, 10-50 घर खरीद लिया. Now when I say you, मैं आपको मैंने as a human being वैसे काउंट नहीं कर रहा हूँ. I'm talking about maybe an institution. ठीक है, institution like say an endowment जिसका कॉर्पस is somewhere around $1 billion, roughly translating to 9,000 करोड़. ठीक है, तो 9,000 करोड़ का आपका सपोज पोर्टफोलियो है. ठीक है, 9,000 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो है, एंड ये 9,000 करोड़ के पोर्टफोलियो को आपको एलोकेट करना है. पोर्टफोलियो मतलब फंड्स है फॉर एग्जांपल. ठीक है, नाउ यू वांट टू एलोकेट दीज इनटू दीज एरियाज. पिकअप एनीथिंग. रियल एस्टेट का अगर अपने बात करते हैं, बहुत बेसिक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. करोगे क्या, घर खरीदोगे, यू वुड बाय अ पर्टिकुलर हाउस एंड यू वुड पुट इट ऑन रेंट, राइट. सो यू वुड रिसीव रेंटल्स 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 एंड रेंटल्स. एंड जो प्रॉपर्टी का प्राइस है, बिकॉज ऑफ लैंड का प्राइस अप्रिसिएशन, दैट प्रॉपर्टी का प्राइस वुड ऑल्सो इंक्रीज. नाउ इमेजिन व्हाट वुड हैपन. सपोज ट्रेडिशनली आपने सिर्फ इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट किया हुआ है. ठीक है, ट्रेडिशनली आपने इक्विटी फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट किया हुआ है. इफ आई थिंक इन्फ्लेशन सबको समझ में आता है, राइट, चीजों का दाम बढ़ना. ठीक है, इफ इन्फ्लेशन राइजेस सिग्निफिकेंटली, एकदम हैवॉक, पूरा शॉक हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल जो करंट सिचुएशन है, राइट. सो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ब्लॉक्ड एंड ऑयल सप्लाई इज कंप्लीटली कंस्ट्रेन्ड. पीपल आर वरीड कि मे बी लॉकडाउन टाइप का सिचुएशन होगा या नहीं, राइट. सो इन्फ्लेशन सपोज इट रीचेस रिकॉर्ड हाई, हर चीज का डिमांड बढ़ते जा रहा है. तो इक्विटी का जो प्राइसेस है, दे वोंट बी एबल टू कीप अप, बिकॉज इन्फ्लेशन एंड इंक्रीज इन द इनपुट कॉस्ट वुड एक्चुअली स्क्वीज द मार्जिन्स ऑफ कंपनीज, जो उस इनपुट कॉस्ट को उतना पास ऑन नहीं कर पाएगा टू द कस्टमर्स इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइस, राइट. भाव बढ़ा के, प्रोडक्ट का भाव बढ़ा के, ठीक है, वो कंपनीज जो प्रोडक्ट का भाव बढ़ा नहीं पाएगा, बिकॉज भाव बढ़ाते ही अ लॉट ऑफ सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, पीपल वुड स्विच टू दैट सब्सटीट्यूट. तो ये वाला काम जो कर नहीं पाएगा कि ज्यादा भाव में बढ़ा नहीं पाऊंगा, तो इससे अगर मेरा कॉस्ट बढ़ता है तब तो प्रॉफिट्स पूरा श्रिंक कर जाता है ना. इफ प्रॉफिट्स श्रिंक, देन इन दैट केस स्टॉक प्राइसेस वुड आल्सो फॉल, राइट. सिमिलरली फिक्स्ड इनकम में इफ इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस, सी इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है. व्हाई, हाउ, ये आप इको में सीखोगे. ठीक है, इफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेस, इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीजेस. इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस भी पूरा गिरता है. ठीक है, तो इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम, बिकॉज ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन शॉक,
ठीक है, हुआ क्या, दोनों ही ड्रास्टिकली गिरा। बट द पॉइंट इज रियल एस्टेट जो है, रियल एस्टेट में होता क्या है कि आप तो वो जो टेनेंट को लीज पे दिए ना भाड़े पे, वो तो आप 11 महीने के लीज पे दे रहे हो ना, 12वां महीने पे आप जा करके तो लीज को रिन्यू कराओगे। लीज को जब आप रिन्यू कराओगे, आप जाके क्या बोलोगे कि भाई देख इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, तो योर लीज विल ऑल्सो बी रिफ्लेक्टिंग दैट, तो यू आर गेटिंग हायर कैश फ्लोज, राइट। सिमिलरली प्रॉपर्टी का भी दाम बढ़ते जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द बेनिफिट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ये जो सारा आपका टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एज एन एसेट क्लास, सी अंडरस्टैंड समथिंग, एवरीथिंग इन दिस इंटायर वर्ल्ड, ठीक है, एवरीबडी और एवरीथिंग इन दिस इंटायर वर्ल्ड इज ट्राइंग टू सेल यू समथिंग, कुछ ना कुछ आपको बेचने का ट्राई कर रहा है। इफ यू आर इवेल्युएटिंग अ स्कीम, स्कीम क्या बोल रहा है, भाई हमको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करो। if you are having a food क्या बोल रहा है कि you have this particular product, you will feel good, for that you would maybe you need to pay this company some money, right? Everything is a pitch. Try to understand this. तो आज अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, हेज फंड में इन्वेस्ट करते हो, मे बी आर्ट में सपोज चलो इन्वेस्ट करते हो, आई डोंट अंडरस्टैंड आर्ट में इन्वेस्ट करना, ऑल्दो माय फादर वाज अ ग्रेट आर्टिस्ट, ठीक है, क्रिप्टो, कमोडिटी, इंफ्रा, ये सब चीजों में इफ यू आर इन्वेस्टिंग, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, रियल एस्टेट का ही एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो इट्स अ वेरी बिग रिटर्न इनहैंसर, अंडरस्टैंडिंग, इट्स अ रिटर्न इनहैंसर, बिकॉज प्रॉपर्टी का प्राइस इंक्रीज बहुत मल्टी टाइम्स हो सकता है एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन, बिकॉज इट एक्चुअली कीप्स ऑन हैपनिंग, इन्फ्लेशन बढ़ते जाता है तो लीज का रिन्यूअल्स भी बहुत ज्यादा होते रहता है, राइट। तो दोनों तरफ से बहुत ह्यूज बेनिफिट आपको मिलता है, लेकिन रियल एस्टेट में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो देयर इज अ मोर कॉम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व्ड, राइट। कौन प्रॉपर्टी का पेपर्स जो है वो वेरीफाई करेगा, कौन फॉर एग्जांपल वहां ऑन ग्राउंड जाके मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग करेगा, सो अ लॉट ऑफ रिस्क इज आल्सो इन्वॉल्व्ड, बट दिस इज वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। ट्रेडिशनल इक्विटी एंड फिक्स्ड इनकम, ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, tenant, what is the risk component? What is the risk component if you are investing in real estate? Think about it. The risk component is कि tenant जो है वो अपना भाड़ा नहीं दिया, वो vacant करके चला गया, तो tenant का भाड़ा vacant करके चला जाना या नहीं, is it related to equity market कैसे perform करता है या fixed income market कैसे perform करता है? Answer please. What about REITs in real estate? That's public equity, not at all. REITs is a part of alternate investments only. तो real estate में आप REITs भी count कर लो, no worries. No ना? तो the point is that alternates का performance is not related to equity or fixed income. Take any example. Hedge fund मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, but for example art जो है, खुद art का ही बात करो ना, art का value क्या होगा क्या नहीं होगा, right? Is it related to equity and fixed income performance? No, not at all. So can I say ये दोनों के बीच में there is a low correlation, right? Can I say कि दोनों के बीच में correlation जो है वो बहुत ज्यादा कमती है ना? Any type of alternate investment you pick, traditionals के साथ the correlation is generally very low. You pick anything, say commodity, commodity में गोल्ड का बात करें अगर अपने, अब गोल्ड के साथ तो उल्टा नेगेटिव कोरिलेशन है, इक्विटी मार्केट्स एंड गोल्ड के साथ, ठीक है, गोल्ड के साथ तो नेगेटिव कोरिलेशन है, राइट। सो इफ इक्विटी मार्केट्स गो डाउन, देन इन दैट केस लोग, पीपल आर नॉट विलिंग टू टेक रिस्क, लोग पैसा उठा करके गोल्ड इज अ सेफ हेवन एसेट वहां पर डाल देते, उल्टा नेगेटिव कोरिलेशन है, राइट। Okay, somebody is asking, did not understand why property prices will rise in case of high inflation. Will it, let me see, will it not lead to slowdown in sales and property? We will discuss, यार हार्दी देखो, we will discuss all that when we get to real estate, ठीक है। For the moment just feeling ले लो, normally तो inflation बढ़ते जाता है, ठीक है ना, normally तो inflation keeps on increasing, तो उससे क्या होता है, स्क्वायर फीट का जो दाम है वो तो बढ़ते जाता है। Do not think of like slow sales and everything, वो आप commercial real estate में एक तरह से चले गए। Why don't you think of basic residential real estate? घर में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, वो घर का प्राइसेस वगैरह बढ़ रहा है, ठीक है, think simple, then go for complicated stuff.
तो नॉर्मली जैसे जैसे चीजों का दाम बढ़ता है, प्रॉपर्टी स्क्वायर फीट का भी तो दाम बढ़ता ही है ना। तो आप जाओगे कोई भी रियल एस्टेट डेवलपर के पास, उसको बोलोगे, वो बोलोगे भैया देखिए स्क्वायर फीट का इतना दाम बढ़ चुका है, तो प्रॉपर्टी का दाम इतना बढ़ेगा। अंडरस्टैंडिंग दैट वे। एनीवे राइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस लो कोरिलेशन स्टफ, ठीक है, बेसिकली अपने सॉरी अपने क्या बोल रहे हैं कि आज अगर अपने कुछ भी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट उठा ले, कुछ भी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट इफ वी पिक अप, so traditionals के साथ when you include them, so there is a huge low correlation benefit. So when you are including alternate with in a portfolio of traditional equity and bond, alternates क्या बोल रहा है कि आप we will increase your returns because we provide a much higher expected return. ठीक है, तो फंड मैनेजर बोलता है भाई तुम लोगों को अगर मैं इंक्लूड करूंगा देन इन दैट केस मेरा तो रिस्क कंपोनेंट भी बढ़ेगा। वो बोला अग्रीड, रिस्क कंपोनेंट बढ़ेगा, बट on a weighted average basis your portfolio risk would be down because of this low correlation benefit, because you will get a lot of benefit of diversification. Understanding? So when we talk about Sharpe ratio, for example, Sharpe ratio के components में it is increasing this part, decreasing this part. So in short, Sharpe ratio increases. Effectively it makes my portfolio more and more efficient. ठीक है, that is what we are talking about. So why alternate investment? Why to even think of including alternate investments in your portfolio? A major pitch of alternate investment is this component, an increase in Sharpe ratio due to correlation being lower than traditionals. तो अगर मैं आपको फिर से ये दिखाऊं, that is the reason doing portfolio classes is extremely important. ठीक है, so suppose this is our capital allocation line, this is the tangency portfolio, this is the Markowitz efficient frontier. ठीक है, and ये था अपना ऑप्टिमम रिस्की पोर्टफोलियो, दिस वाज द इंडिफरेंस कर्व्स, दिस इज IC3, दिस इज IC2, दिस इज IC1. जो इन्वेस्टर है, जो क्लाइंट है, क्लाइंट वुड नेचुरली वांट टू शिफ्ट टू अ हायर इंडिफरेंस कर्व, राइट? बट यहां पर जो है ना, इस पर्टिकुलर इंडिफरेंस कर्व में देयर इज नो पोर्टफोलियो पॉसिबिलिटी एट ऑल. But the point is, imagine the slope of the capital allocation line, it used to be Sharpe ratio, if you remember from the portfolio classes. Now, when you are including alternate investments, तो आपका तो Sharpe ratio बढ़ गया, right? In short, आपका जो slope है, that also increased. Now, the point is, even this particular curve is also attainable, right? So that is the main benefit of including alternate investment in your portfolio. तो even this particular indifference curve is attainable. तो client का higher utility satisfaction आप कर सकते हो. ठीक है, बताओ इतना तक समझ में आया आप लोगों को? Is it clear? Yes, is it clear? बताओ. I'm trying to go as slow as possible. So it's very important for you guys to have a very good grip on portfolio management so that आपको context और better समझ में आए. So the core pitch, the feature of alternate investment is that first of all it offers a low correlation with traditionals. The second feature would be obviously it has a high risk and high, you don't need to write all these, मैं बस आपके reference के लिए लिख रहा हूँ, expected return. At the same time, think about it, investing in a real estate, it involves a lot of money. So it requires a huge capital outlay. In short, बोलना चाह रहा है कि retail लोगों के लिए generally advisable है नहीं, ठीक है? Until and unless you meet some minimum capital requirements, जो हम लोग देखेंगे when we get to the
structure वाला part, there is a particular concept called accredited investors. Only accredited investors are allowed to invest in alternate investments. ठीक है, अगर fund के through ही invest कर रहे हो, so it is मैंने alternate investment fund में if you want to invest, so there are certain minimum capital requirement rules. For example, India में if you want to invest in an AIF alternate investment fund, देन इन दैट केस आपका मिनिमम 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. ठीक है, ये सेबी का रूल्स है, राइट. एंड यूएस में देयर इज अ $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. तो उसके नीचे तो यार आप लगा ही नहीं पाओगे. ठीक है ना. तो दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. अगेन वी आर लुकिंग एट लो लिक्विडिटी. रियल एस्टेट में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, देन फॉरगेट योर मनी फॉर द नेक्स्ट 5 to 6 years. राइट, प्राइवेट इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर दिया, फॉरगेट योर मनी फॉर द नेक्स्ट 10-15 years. ठीक है. एंड ऑब्वियसली लॉन्ग टाइम होराइजन. When we talk about alternate investments, generally we are talking about a huge expected return, right? There is very little scope of benchmarking. ठीक है, those alternate investments जो अपने security market indices वाले chapter में भी देखे थे. So mostly होता क्या है alternate investments में ना, there is a lot of active management that happens. Mostly आप समझ लो active management ही होता है. ठीक है, there is no way in passively वैसे investing in alternate investments. राइट, बिकॉज एक तो इसका बेंचमार्क ठीक से मिलता नहीं है. ठीक है. सेकेंड इज दैट इफ यू आर इन्वेस्टिंग एंड यू आर अप फॉर अ वेरी हाई रिटर्न विद अ ग्रेट रिस्क. ठीक है, विद अ ग्रेट रिस्क, देन इन दैट केस क्या होता है कि बेसिकली यू आर डूइंग एक्टिव मैनेजमेंट ओनली. सो ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड यस लेस ट्रांसपेरेंसी. फीस का अगर अपने बात करें, थिंक अबाउट इट. जो फंड मैनेजर है से $100 million, ठीक है, $100 million उसको मैनेज करने के लिए दिया हुआ है, राइट. सो द फंड मैनेजर इज अ CFA. he is basically managing this entire money, ठीक है, and he is investing in the alternates. think real estate, think infrastructure, think crypto, think all these areas. टिपिकली फी का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा कुछ होता है, से 110 और 220. बोलना क्या चाह रहा हूं, 2% इज द मैनेजमेंट फी. ठीक है, मैनेजमेंट फी. ठीक है, तो ये $100 million के ऊपर ये $2 million पर ईयर, ठीक है, ही गेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही परफॉर्म्स और नॉट. अंडरस्टैंडिंग, माने दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट फी. ये जो 20% है ना, ये 20% इज नोन एज परफॉर्मेंस फी और कैरीड इंटरेस्ट और कैरी, जो भी आप बोल लो, बट थिंक ऑफ परफॉर्मेंस फी ओनली. ठीक है, इसका क्या मतलब है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज सपोज अ पर्टिकुलर कुछ. अब देखो यार, आप एक्टिव मैनेजमेंट का बात कर रहे हो, सो डोंट यू थिंक देयर हैज टू बी अ हर्डल रेट कि इसके ऊपर अगर आपने मेरा फंड का मैंने वैल्यू बढ़ाया, if you give me returns beyond a particular hurdle rate, then in that case you are eligible for that carry benefit or that performance fee. वरना परफॉर्मेंस का जज कैसे करेंगे. अगर मेरे को सिर्फ 2-3% ही फंड का बढ़ाना है, तो ये सीधा $100 million को मैं या तो मैं सीधा कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल दूंगा, 2-3% मेरे को मिलता रहेगा. नो, नॉट रियली. आई वॉन्ट टू बेंचमार्क इट. यस, आई एम एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट अल्फा, अगर आप उस तरह से बात करो तो. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल the hurdle rate is 10%. ठीक है, now ये 20% how does it come into the picture? Think about it. $100 million जो है, the manager was suppose able to earn 120, माने 100 को सीधा 120 पहुंचा दिया. So we get a 20% return, right? hurdle rate को आपने exceed किया by 10%. लूजली स्पीकिंग, ठीक है, तो 10% आपका हर्डल रेट था, आपको 110 तक पहुंचाना था, आपने 120 तक पहुंचा दिया. सो एक्स्ट्रा जो $10 million है उसके ऊपर 20% यू वुड गेट. अंडरस्टैंडिंग, एक्स्ट्रा जो $10 million है उसके ऊपर 20%, विच इज समवेयर अराउंड $2 million. तो ये $4 million पूरा जाता है AIF वाले मैनेजर को. ठीक है, इसको बोला जाता है हार्ड हर्डल. वी विल understand what these things are once we get into the compensation part, but primarily आपको feeling clear है किस तरीके से क्या होता है. is the feeling clear? yes, Hardik, I'm asking you and others, Hina and Rajat and Dharma, बताइए. Pawan,
फीलिंग क्लियर है क्या आप लोगों को? वेरी गुड, ठीक है. So we have a more complex fee structure, we have less transparency, we require specialized knowledge for people who would actually manage, do those due diligences, find those properties, find those private equity investments, find those alternate infrastructure investments, etc. And accordingly they would invest in those companies and they would generate these returns. उसका इवैल्यूएशन अपने उसको क्या फी देंगे क्या नहीं देंगे, ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 कितना एसेट्स मैनेज कर रहा है या फिर कितना कमिट किया हुआ है कैपिटल, ठीक है, उसके ऊपर एक परसेंटेज जिसको मैनेजमेंट फी बोलते हैं. इट इज इररेस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है. अब मेरे को तो सबसे पहले जब ये बताया गया था तो आई वाज लाइक सर ये फीस तो बहुत ही मजेदार चीज होता है मैनेजमेंट फी, कि बेसिकली कुछ ना करने से भी मेरे को $2 मिलियन तो घर पे मिलते ही जा रहा है, राइट. सो $1 मिलियन इज रफली 9 करोड़, $2 मिलियन इज 18 करोड़, 18 करोड़ मिलते जा रहा है, 100 मिलियन का पोर्टफोलियो है. तो फिर संजय सर का ऐसा कुछ बात था कि ये मजा तो उस तरीके से तुम बोल रहे हो, ठीक है, इट्स अ वेरी नाइव स्टेटमेंट, बट डू अंडरस्टैंड कि इफ ही डज नॉट परफॉर्म सीधा फंड को पुल आउट कर लेगा, ठीक है, दैट वे. So yeah, that was management fee, and once you exceed a particular hurdle rate, so on that extra, ठीक है, on that extra exceedance you would get the performance fee. More complex fee structure than a typical PMS. PMS में क्या होता है, it's just basic आपका जो जो मैनेजमेंट फी है, जो पीएमएस नहीं एग्जैक्टली जो इंडेक्स फंड टाइप का फंड्स होता है वहां पर सिर्फ मैनेजमेंट फी होता है, वो भी बहुत कमती मैनेजमेंट फी होता है. इज दिस पे ऑफ ओनली फॉर द फंड मैनेजर और फॉर द इंटायर टीम? तो फंड मैनेजर जो होता है ना, दैट फंड मैनेजर इज नॉट वन सिंगल पर्सन, इट इज ऑलवेज द इंटायर टीम. थिंक अबाउट इट, ठीक है, इट इज ऑलवेज द इंटायर टीम. तो कोई ब्लैकस्टोन इज सपोज मैनेजिंग द इंटायर फंड, तो पूरे ब्लैकस्टोन के लिए वो इनकम हो गया, राइट, दैट वे. So these are the typical features of alternate investments.